Hello and welcome everyone to the podcast with Magnet CA. I'm your host Ajay Sharma and it's my pleasure to bring you another exciting and informative episode. Today we have with us CA Amit Manik sir, one of the most experienced and renowned faculties based out of Pune. Hello Amit sir, welcome to the podcast. Thank you. I would like to thank you for coming here, and it's our pleasure to have you in our show. I hope that this show will be informative for our students. Thank you so much. ये बताइए सर आप टीचर कैसे बने? I mean it is one of the very renowned and noble profession, and you get a lot of respect. So how did you come to this? Actually, I cleared my CA in 2008 after clearing chartered accountancy course. Actually, my dream is to go for practice. I would like to go for practice only, and I would like to set up office. So in initial phase, you might be having difficulty. So I joined in organization as an employee. I went in particular, you can say campus. Through campus, I got job in Wipro BPO. And I accepted that particular assignment because that was my first assignment and I would like to get experience first of all. कि job से मुझे experience मिल जाएगा और company भी काफ़ी अच्छी है. So I can go ahead. First of all, initial years में I can take my experience and then after I'll switch over to the practice. So that was my plan. And I do not have any plan to come in this particular field. फिर क्या हुआ कि 6 महीने के बाद I resigned from my job and like to come to Gujarat. I'm basically from Gujarat and I accepted job in, you can say, Chennai. So due to that regional differences and due to, you can say, I would like to go ahead with my goal of practice. So I come back and I started my practice. In practice, I am like fond of special subject. My special subject is tax. So I would like to get more knowledge about the tax. So what I did is, my friend, my, you can say better half, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बेसिकली टीचिंग फील्ड में है कब से, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपको अभी टैक्स में मास्टरी लानी है तो व्हाई डोंट यू गो एंड गो फॉर टीचिंग, और टैक्स सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. आई थॉट चलो नो प्रॉब्लम, वी कैन गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर, वी कैन गिव अ ट्राई. और शुरू से मैं मेरे फ्रेंड्स को और सभी को तो पढ़ाता था जब मैं हॉस्टल में था तब, तो आई थॉट चलो व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई. देन टैक्स सब्जेक्ट के साथ मैंने शुरू किया और धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 साल प्रैक्टिस चली और एवरी डे 2 hours ओनली फॉर टैक्स सब्जेक्ट आई यूज्ड टू गो. देन आफ्टर देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे मुझे सोचना था आइदर आई नीड टू कन्वर्ट माई सेल्फ इन टू, बिकॉज आई कैन नॉट go in both the right. I need to convert, either I need to focus myself on practice or I need to go for teaching field. और टीचिंग फील्ड में मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा था. एक और बात थी जो मुझे टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छी लगती थी, दैट इज आई एम गोइंग बाय एथिक्स. ओके, इन प्रैक्टिस या इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू नीड टू फेस मेनी सिचुएशंस जहाँ पे आपको अनएथिकल होना पड़ता है. बेसिकली आई एम अ पर्सन, नो आई डोंट वांट टू accept any kind of, you can say, unethical practices. I would like to go for, you can say, noble profession and I would like to go for ethical thing. So मैंने क्या किया कि स्विच ओवर किया और शुरू किया कि, और प्रॉब्लम क्या हुआ था कि टैक्स में मैंने 2 years तो लेक्चर ले लिया था. फिर क्या हुआ कि उसी जो क्लास, जिस क्लास में मैं लेक्चर ले रहा था, ओके, उसी क्लास के दूसरे, मतलब बेसिकली आई एम फ्रॉम राजकोट, तो राजकोट सिटी में दूसरे क्लासेस जो हैं वहाँ से स्टूडेंट फेल हुए और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई सर आपका टैक्स में नाम सुना है, तो आप टैक्स में क्या है बार बार अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो बोले क्रैश बैच जो है फास्ट ट्रैक बैच वो हमें करवाओ. ऑलमोस्ट इन 2010, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010. तो कुछ स्टूडेंट आए और मुझे बोले चलो सर ये मेरे पास पर्टिकुलरली ये क्लासेस की है, आप वहाँ से शुरू कर दो और आप हमें टैक्स पढ़ाओ, हमें आपका टैक्स में मास्टरी आपकी. तो फिर मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट से शुरू किया धीरे धीरे और फिर देखा कि वो बच्चों जो भी स्टूडेंट फेल होके आए थे, क्योंकि
सीए कोर्स में क्या है, फेल्यूर का रेशियो बहुत ज्यादा है, आप समझ लो 15% 85% ऑफ द स्टूडेंट। और ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट डल है या वो कैलिबर नहीं रखते, दे डू हैव द कैलिबर, बिकॉज वंस यू आर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स यू हैव दैट कैलिबर कि आप क्लियर कर सकते हो, बराबर। बट फिर क्या हुआ कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो वो गाइडेंस मिलने लगा, डिटेल में उसको मेंटरशिप मिलने लगी, तो फिर वो पासिंग रेशियो जो है वो 15-20 से बढ़ के ऑलमोस्ट 70-80% हो गया। तो क्या हुआ, जो भी बच्चे आते क्रैश बैच के आते, और ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट हर बार 70% 80% मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्रैक कर जाते। तो फिर क्या हुआ, एक दो साल में धीरे धीरे स्टूडेंट ने बोला कि चलो सर अभी टैक्स में तो हो गया, फिर क्या है, जो भी बच्चे फेल होके आते थे सर टैक्स के साथ साथ अभी कॉस्टिंग भी करवा दो, तो फिर मैंने वो शुरू किया। फिर बोले सर अभी अकाउंटिंग भी करवा दो, तो फिर मैंने वो शुरू किया। फिर बोले अभी लो करवा दो, तो कितने सब्जेक्ट करवाऊंगा मैं यार, अभी मैं अकाउंट कर रहा हूँ, कॉस्ट कर रहा हूँ, टैक्स कर रहा हूँ। तो बोले सर ग्रुप 1 में तो हो गया, अभी ग्रुप 2 का क्या करें, ग्रुप 2 में आईटी भी है। बोले आईटी इज नॉट माई सब्जेक्ट, आई एम नॉट इन टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। बोले आप कुछ भी रीड करके पढ़वा दो बट आप पढ़ाओ, हमें आपसे मतलब एक कनेक्शन बन जाता है स्टूडेंट के साथ। और जब जब आपकी टीचिंग स्किल उनको पसंद आती है, हाँ पसंद आती फिर थी, क्या उनको अच्छा बोलते हैं, लगता था, समझ मैंने आता था। मैंने क्या किया, फैकल्टी के रख के भी देख लिया, तो बोले नहीं आप ही पढ़ाओ। तो फिर ऐसे मेरा गोल बनता गया कि भाई चलो अभी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, मुझे टाइम मिल नहीं रहा है। कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं सर, अगर मैं स्टूडेंट्स को जानना चाहें, स्टूडेंट्स अभी तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? एज ऑफ नाउ, मतलब स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क मी कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो। एक्चुअली सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। ओके पहले जब आईपीसीसी था तब उसमें 8 सब्जेक्ट आते थे, वो सारे 8 सब्जेक्ट में पढ़ाता था। तो सीए इंटर ऑल 6 सब्जेक्ट इन डेप्थ रेगुलर कोर्स। और एक्चुअली स्टूडेंट को ये पसंद आता था कि मटेरियल मैं खुद बनाता था। मेरा एक्चुअली मैंने क्या किया, प्रैक्टिस छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सब कुछ आई लेफ्ट एंड आई कंप्लीटली फोकस, सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक कंप्लीटली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और मैं क्या करता था, मटेरियल खुद से बनाता था कि एनालिसिस कर करके जो भी रिसेंट सम आए उसको ऐड कर लो, जो भी क्वेश्चनर्स हैं उसको ऐड कर लो। तो ऐसे करते करते मटेरियल इतना अच्छा बन गया कि स्टूडेंट को वो मटेरियल बहुत अच्छे लगने लगा। बोले अभी हमें मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है, आरटीपी एमटीपी, मतलब अभी तो अगर आप देखोगे बहुत सारे स्कैनर्स और वगैरह मिलते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11 नहीं मिलता था, तो करेक्ट है। इतना कुछ आप बोलोगे एमटीपी में से या फिर आरटीपी में से, तो ऐसी कोई कंपाइलर मतलब बहुत कम आती थी। तो मैंने क्या किया, सब कुछ कंपाइल कर करके वो मटेरियल बनाया और सारे मटेरियल मैंने दिए। तो सीए इंटर ऑल 6 सब्जेक्ट। और फिर क्या हुआ, 2011 13 और 15 तक पूरा इंटर कैप्चर कर लिया। फिर आए स्टूडेंट, मतलब अभी इंटर वालों से रेफरेंस लेके आ रहे, बोले सर इंटर तो ठीक है, फाउंडेशन पढ़ाओ, क्योंकि क्या है कि फाउंडेशन करके आएंगे 12th में आएंगे स्टूडेंट। बोले ठीक है चलो अभी वो भी करते हैं। तो फाउंडेशन में शुरू किया। अभी फाउंडेशन में तो क्या है, रेगुलर स्टूडेंट आएंगे तो पूरे सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, तो ऑल फाउंडेशन ऑल 4 सब्जेक्ट्स। So, any difference in this? मतलब yeah, it is quite similar between inter and foundation. सिर्फ इंटेंसिटी लेवल एंड डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है इंटर में, और द कोर्स इटसेल्फ इज इंटर कंप्लीटली और डिफरेंट। ये फाउंडेशन, एक तो दोनों कोर्स में भी बहुत सारा डिफरेंसेस हैं, और बेसिकली कोर्स तो डिफरेंस है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट जो आते हैं उसमें बहुत बदलाव होता है। क्योंकि अभी जो फाउंडेशन में स्टूडेंट आए, 12th खत्म करके आए हैं, और अगर आप देखोगे 12th में या तो वो रैंकर हो गए या तो वो स्कूल टॉपर्स हो गए, और कभी उन्होंने फेल्योर देखा नहीं है, नेवर एवर, और सीधे इस कोर्स में आ गए, बराबर। अभी उसको लगेगा रैंक लाना है, रैंक नहीं, अभी यहाँ पे पास हो जाओ तो भी काफी है। और कई बार तो क्या होता है, पहली बार फेल्योर आया, मान लीजिए स्टूडेंट को पहली बार फेल्योर आया, तो समझ नहीं पाते कि क्या गलती की हमने। बट टोटली जो 11 12 से टोटली डिफरेंट होके अभी आप प्रोफेशनल कोर्स में आए, तो फाउंडेशन लेवल पे जो परेशानी आती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और इंटर लेवल पे जो परेशानी आती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट 2 ग्रुप में बाइफर्केशन हो जाता है। एक जो स्टूडेंट वर्नेकुलर लैंग्वेज मीडियम में से स्टडी करके आए हैं, लाइक हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम या मराठी मीडियम जो भी है, उसमें से जो एक स्टूडेंट का बेस आता है, और एक कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड या आईसी बोर्ड में से आए, उन दोनों में गैप एक माइनर ऐसा होता है
कि जो एक्चुअली वर्नाक्युलर लैंग्वेज में से आए उसको शुरू में लो, फॉर एग्जांपल अभी देखो अकाउंट और लो है तो उसमें तो डिस्क्रिप्टिव है, इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू है तो वहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैथ में आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्यूए में बराबर। तो लो में बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि समझ में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बराबर एज ए स्टूडेंट, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हाउ आई विल बी एबल टू पुट इन, यू कैन से पेपर में कैसे लिखूं, दैट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट लो सब्जेक्ट। तो लो में क्या होता है कि मैं समझ तो पाता हूं बट पता नहीं चलता मेरे मार्क्स कहां पे यू कैन से कट हो रहे हैं और कहां पे मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि लो सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या थियरी सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 70+ 80+ इन दिस सब्जेक्ट्स ऑल्सो बराबर है। बट थिंग इज प्रॉपर यू कैन से शेड्यूल पे जाना होता है, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए बट उसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस डे टू डे बेसिस पे राइट करना होता है। और राइटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेली बेसिस पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ, टास्क, डेली टास्क इन थियरी सब्जेक्ट, ओके, एंड यू नीड टू राइट एंड देन विल कंपेयर इट, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लो में। अकाउंट में क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर सम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क, होम असाइनमेंट, इससे हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज लिखना, जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लिखोगे उतना आपको मतलब यू कैन एसेस योरसेल्फ। और होता क्या है कि कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर ऑप्शन में नहीं निकालना है। मैंने देखा है ट्रेंड चलता है कि भाई एबीसी एनालिसिस करके देते हैं बच्चों को, तो ये ए है, कैटेगरी ए है, वो आप कर लो, बी में फोकस मीडियम करो, सी में तो फोकस ही नहीं करने की जरूरत है। बट हर बार वो सिस्टम जो है वो आईसीए में वर्क नहीं करती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे ने एबीसी एनालिसिस करके गए और आईसीए ने क्या किया, सी कैटेगरी में से ही बहुत सारा पेपर ले लिया। अभी बच्चे को लगेगा क्वेश्चंस ले लिए, हाँ ये क्वेश्चन सारे आउट ऑफ ब्लू आ रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैंने कहा कहीं पे पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो आप सिर्फ समरी पे जा रहे हो या फिर आप इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। देखो ये 11th 12th तो है नहीं, ना ही ये बीकॉम है बराबर। तो यहाँ पे योर प्रिपरेशन शुड बी ऑफ दैट ऑफ एक्सपर्ट लेवल, और यहाँ पे आप कुछ भी ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। यू नीड टू हैव थोरो अंडरस्टैंडिंग, आपको पूरा मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चंस करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीआई नहीं, अगर आप देखोगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है उन्होंने अपने मॉड्यूल्स दिए हैं, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, ये सब दिए हैं, आपको सब कुछ करना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को सब अलग अलग करना है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। तो मैंने क्या किया है, सबकी एक कंपाइलर बना ली है, everything is compiled in one material. You have done this for all the subjects, you have done that, or any particular subjects that you do that compiling? नहीं, for all subject, ये जो कंपाइलर में बोल रहा हूँ बराबर, ये जो भी मटेरियल में बोल रहा हूँ, चाहे आप मैथ्स ले, इकोनॉमिक्स ले, अकाउंट ले, लो ले, सीए फाउंडेशन लेवल पे और सीए इंटर लेवल पे, ऑल 6 सब्जेक्ट, ऑल मटेरियल। आपको इतना टाइम कहाँ से मिलता है सर, इतने सारे सब्जेक्ट्स के इतने सारे कंपाइलर बनाना और फिर क्लासेस लेना? मतलब आपका वर्किंग आवर्स आप शुरू कितने बजे करते हैं और खत्म कितने बजे करते हैं, आपका डे का? See, my working is very limited. Even if I take all 10 subjects, सुबह मैं 8 बजे शुरू करता हूँ। After 6:30 I never meet student. 6:30 के बाद मेरे क्लास बंद होते हैं, 6:30 के बाद कभी भी नहीं जाता है। But how many hours of teaching happens? The proper teaching, how many hours of per day? मतलब टीचिंग में तो क्या होता है, 8 से 6 में पढ़ाता हूँ, बट होता क्या है, सब्जेक्ट बारी बारी आते हैं। लाइक अभी मान लीजिए रेगुलर स्टूडेंट हैं और उसमें क्या होता है कि 8 मंथ्स का टाइम होता है, तो 2-2 महीने में ऐसे होगा कि भाई पहले ग्रुप 1 चल रहा है तो पहले 3 to 4 मंथ्स ग्रुप 1 चलेगा, उसके बाद 3 मंथ्स जो है उसमें ग्रुप 2 चलेगा, फिर वैसे ही फाउंडेशन में फेजेस में वर्क करता हूँ मैं। So now I want to go back to your previous life. So आपको आई थिंक 15 odd years का एक्सपीरियंस है, विच इज़ ह्यूज इन दिस इंडस्ट्री। सो उससे पहले आप आई थिंक विप्रो में, तो हाउ व्हाट इज द डिफरेंस? विप्रो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा दैट एनकरेज्ड यू टू मूव टू दिस प्रोफेशन? एक्चुअली विप्रो में तो क्या हुआ कि
पहले से ही जॉब करने का जो मेरा माइंड सेट है वो टेम्पररी था। ओके, तो इसीलिए दैट इज नॉट द एस्पेक्ट कि जो ऐसा नहीं है कि आप जॉब में कुछ खराबी है, वो आपका गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट थिंग इज दैट पहले से मेरा माइंड सेट था जो भी करना है वो अपना खुद का करना है। ओके, तो इसलिए क्या हुआ कि अभी जॉब में जो एक रिस्पेक्टिव पोजीशन होगी वो कुछ हद तक लिमिटेड होगी। आई कैन नॉट हैव माई ओन फ्रीडम। ओके, मेरे एथिक्स, मेरे उसूल, मेरे पर्टिकुलरली यू कैन से फ्रीडम, वो सब डिफरेंट होती है। तो फॉर राइटली उसको बोलूँ तो जॉब में आपको सुनना पड़ेगा और इस प्रोफेशन में आपका लोग सुनेंगे, स्टूडेंट्स आपकी सुनेंगे। टेल मी समथिंग वेरी एक्साइटिंग दैट हैपेंड व्हेन यू वर अ सी एस्पिरेंट, राइट? आप जब पढ़ाई कर रहे थे ऐसा क्या था जो बहुत अलग था, यूनिक था? एनी स्टोरी दैट इज नॉट नोन टू एनीवन? वैसे तो एट द टाइम ऑफ सीए कोर्स, अभी देखिए हमारे टाइम पे जो पर्टिकुलर वे ऑफ टीचिंग होता था और अभी के टाइम में जो वे ऑफ टीचिंग है वो टोटली डिफरेंट है। ओके, अगर आप हमारे टाइम पे देखेंगे तो वहां पे हमें एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती थी कि अगर मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है तो क्या है, ट्यूटर तो बहुत ही कम होते थे। क्योंकि मैंने इंटर मेरा जो क्लियर किया वो 2005 में किया था, तो भी 2005 में अगर आप देखोगे मॉड्यूल उसमें भी लिमिटेड सम्स हुआ करते थे। उसमें भी अगर आप देखोगे सिर्फ एक पास एग्जाम की कंपाइलर मिलती थी या रेफरेंस बुक। ऐसे आप टीचर ने आपको समरी बना के दे दी या मैराथन करके दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी हमें करना था वो खुद से करना था। तो हम क्या करते थे कि पर्टिकुलरली सारे फ्रेंड्स जो है वो इकट्ठा स्टडी करते थे, एक दूसरे की टेस्ट लेते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। क्योंकि क्या है, सारे सब्जेक्ट की तो टीचिंग भी नहीं लेते थे, तो जो जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी टीचिंग ली और फिर बाकी जो है उसमें एक दूसरे को पढ़ा लिया। तो फिर क्या था कि सबको एक साथ क्लियर करना था कि नहीं, अभी ये जो हम ग्रुप हैं वो अब सब साथ में निकलेंगे। ओके, और ऐसी एफर्ट्स करेंगे। और हमने सबने टारगेट रखा था कि भाई इंटर में भले ही कुछ भी हुआ हो बट फाइनल में 450 प्लस का टारगेट है। और क्या है, दोनों ग्रुप निकालने हैं फाइनल में। तो सारे फ्रेंड्स जो हैं वो सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। और फिर जब एक सभी का एक साथ जो वो पर्टिकुलरली रिजल्ट के दिन, क्योंकि एक्चुअली दोनों वे से आपको रेडी होना रहता है रिजल्ट के दिन, क्योंकि इट कैन बी आइदर टू मच एक्साइटिंग थिंग और इट विल बी अ हार्ड सेटबैक। और वो जो दिन था, लाइक जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, लाइक दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब मैंने अपने पेरेंट्स और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उसकी आंखों में जो आंसू देखे कि नहीं, दिस इज अ डे अचीव्ड, उसका जो ड्रीम था वो एक्चुअली अचीव हुआ। एंड दैट गिव मी अ बिगेस्ट यू कैन से पीस कि नहीं चलो। सर मैं दो ही प्रोफेशन में ये चीज़ देखता हूँ, एक तो यूपीएससी जब कोई क्लियर करता है और दूसरा जब सीए क्लियर करता है। सो आई न्यू माई वाइफ बिफोर आवर वेडिंग, सो शी वॉज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने भी जब सीए कंप्लीट किया, या मेरे फादर इन लॉ थे वो भी सीए थे, तो उस समय सीए होना लाइक दैट जनरेशन इटसेल्फ, आई मीन बहुत यूनिक था, रेयर था उस समय। तो आई कैन कनेक्ट विद यू कि आप क्या बोल रहे हैं कि जब आपको पता चलता है कि आप सीए बने हैं तो नॉट ओनली यू, आपकी फैमिली मेंबर्स को कितना प्राउड फील होता है और वो कितना खुश रहते हैं, कितना खुश होते हैं। में तो होता ही है, बट हमारे टाइम में क्या थी, 3 साल की आर्टिकलशिप थी। अभी तो क्या 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई। 2 साल हो गई है, और करेक्ट। हमारे टाइम ऐसा था कि एक बार आपने, मतलब हमारे जमाने में P1 P2 हुआ करता था, तो जैसे ही आप इंटर क्लियर किए और आर्टिकलशिप शुरू की, 2.5 साल में आपकी फाइनल की एग्जाम आती थी। और जैसे ही फाइनल की एग्जाम निकाल ली, और हुआ क्या, अभी देखिए लास्ट 2 to 3 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप में जो चेंज मिला, क्योंकि 2.5 साल तक आप आर्टिकल स्टूडेंट है और सिर्फ आर्टिकल है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब आप वही आर्टिकलशिप, क्योंकि मेरी तो ऐसा हुआ था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे, अभी आर्टिकलशिप पेंडिंग थी। तो फिर तो एक्चुअली हम गए तो सब जगह पे लाइक हमारे जो सीए होते थे बोले ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आर्टिकल अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। और जो क्लाइंट रिस्पेक्ट देते थे, बोले मैं लास्ट ईयर में ही आया था यहाँ पे मैंने ही ऑडिट किया था, रिपोर्ट भी मैंने ही बनाया था, सर ने सिर्फ सिग्नेचर की थी। नहीं, अभी वो जो टोटली आपकी वैल्यू चेंज हो गई है। रेप्यूटेशन जो है ना इस कोर्स में, वो मैंने देखिए
जैसे आपने बोला कि यूपीएससी आईपीएससी में होता है, मतलब वहां पे और यहाँ पे जो रेपुटेशन मिलती है, मतलब बिकॉज ऑफ दैट इज द बिगेस्ट, यू कैन से money is a secondary matter according to me for choosing this particular course. Biggest thing is, you can say, respect you are getting or dignity you are getting because of this particular course. That matters a lot for each and every student. सर नाम के आगे सीए डालने के लिए बहुत लोग तरसते हैं और बहुत साल तरसते हैं, तब वो नाम मिलता साल है। करते हैं और दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। बाद में अफसोस होता है। अभी हमारे साथ भी कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, बोले वो कितनी भी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए, जब हम मिलते बोलते अभी मैं कितनी भी अच्छी पोजीशन में हूं, मुझे एक अफसोस ऑलवेज रहेगा कि मैंने गिव अप कर दिया। तो आई वांट टू टेल द स्टूडेंट कि कभी भी लाइफ में ऐसा आपको फ्यूचर में चांस ना मिले कि आप खुद को बोलो कि मैंने गिव अप नहीं किया होता, तो अच्छी बात होती, क्योंकि बाद में पछताने से अभी कोई फायदा नहीं होगा। बाद में अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, वैसे तो ये कोर्स आप किसी भी एज पे कर सकते हैं, बट फिर बाद में वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी कितनी भी अटेम्प्ट लगे, बट एक ये कोर्स के साथ ये है कि आप कभी भी गिव अप ना करें। गिव अप नहीं करोगे ना तो हो ही जाओगे। और एक प्रॉपर डायरेक्शन से एफर्ट करना, कंसिस्टेंसी इज अ की। जितना कंसिस्टेंसी से आप पढ़ोगे, यू नीड टू, यू कैन से फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाना होता है। आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया है कि आप जैसे बोले कि आपके कलीग्स रहते हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स रहते हैं जो सीए कर रहे हैं, उन लोगों ने क्लियर कर लिया सीए और आप रह गए, ऐसा कभी? हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हाउ इज द फीलिंग लाइक? इंटर में हुआ था कि मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, और ऐसा हुआ था कि मतलब जब जब पहली बार जो फेल्योर हुआ था इंटर लेवल पे, मतलब स्कूल में रैंक, सब जगह पे रैंक, एज आई सेड अर्लियर, तो हुआ क्या, रिजल्ट का दिन है और मैंने फ्रेंड्स को बोल दिया था अभी देखो रिजल्ट में पास ही होने वाला हूँ, इतना कॉन्फिडेंट कि नहीं अभी तो पास ही हूँ, क्योंकि तब तक पता ही नहीं था फेल्योर क्या होता है। ये क्या होता है? हाँ, और जिस दिन वो पर्टिकुलर फेल्योर आया, टोटली शॉक, और कुछ फ्रेंड पास भी हो गए, बट आई एम हैप्पी फॉर देम कि नहीं वो पास हो गए। बट अभी मैंने क्या किया, गाइडेंस लेना शुरू किया कि भाई कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे फेल्योर हुआ ना, उसके बाद थोड़ा बहुत परेशानी हुई, बट फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर दिया कि नहीं अभी ये जो फेल्योर है ना, ये एक बार आया है, अभी वो दोबारा कभी भी सीए के पूरे डिग्री में नहीं आना चाहिए। और फिर इतना एफर्ट किया इंटर लेवल पे कि फिर फाइनल लेवल पे 1 बाय 1 एक एक ग्रुप निकल गया, तो फिर वो एफर्ट्स इतना दिया कि फिर वो फेल्योर आया ही नहीं। सो आपको कुछ दिन लो फील हुआ होगा, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? कोई किसी ने आपको गाइडेंस दिया, हेल्प किया, और यू थॉट कि नहीं अब मेरे को ये चीज़ नहीं देखना है आगे? मतलब गाइडेंस में, मतलब प्रॉपर गाइडेंस तो जो है वो उस टाइम पे मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली गाइडेंस मिल गया तो फिर फेल्योर से आप जल्दी से बाहर आ जाओगे। और वो एक डायरेक्शन में मिलना और वो डायरेक्शन पे जाना, दैट इज रियली वेरी क्रूशियल, क्योंकि वहां से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप फेल होते हो तो सिर्फ आप ही फेल नहीं होते हो, आपकी पूरी फैमिली जिसने आपके वो उम्मीद लगा रखी होती है उससे fail होते हो। और उन लोगों को सुनना पड़ता है, और जब वो लोग सुनते हैं, कभी कभी क्या होता है वो कह नहीं पाते हैं, बट उसको अंदर से होता है कि नहीं जल्दी से वो क्रैक कर जाए, तो जल्दी से मैं भी बता सकूं कि नहीं चलो ये क्रैक कर लिया है। और एफर्ट्स भी इतना डालते हैं पेरेंट्स जो हैं आपके, मतलब इसके लिए कितना एफर्ट्स करते हैं, वो अपना इतना सारा सेक्रीफाइस कर करके आपको इस कोर्स में लाते हैं। पहले तो ठीक, हमारे जमाने में तो कोर्स जो है वो इतना मतलब कॉस्टली नहीं हुआ करता था, अभी भी कंपेरेटिवली नहीं है, बट फिर भी एज कंपेयर टू आर यू कैन से एरा। करेक्ट, मतलब अभी आप अगर दूसरे कोर्स से कंपेयर करेंगे तो इट इज मच चीपेस्ट। कंपेयर करोगे कोर्स अकॉर्डिंग टू मी, नहीं ये मॉनिटरी वाइज तो बहुत ही, और सामने इसकी जो आरओआई है रिटर्न वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही, but that is because of the hard work that people do, not because of anything else, right? So I take it a different way. So basically अपन grammatically we say that failure का, अगर कोई फेल होता है इंटर में, अगर क्लियर नहीं किया we say failed हो गया, but then I say it in a different way. I call it as experience. आपने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को, बिकॉज आप फेल होते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आप फिर से और मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं, आपका रिवीजन होता है और आप सीखने को मिलता है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? आप और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होते हैं।
आप अगर इंटर्न में शायद क्लियर नहीं करते, मतलब क्लियर कर लेते तो फाइनल में आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकता था या आप भटक सकते थे, लेकिन आपको वो एक जोर का झटका धीरे, हाँ, एंड देन दैट गिव्स यू सम एक्सपीरियंस। मतलब दैट एक्सपीरियंस विल श्योरली वर्क आउट, क्योंकि Correct. वो एक्सपीरियंस मिला ना, तो अभी वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल किसी भी सब्जेक्ट को। अब देखिए अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट, एज आई सेड, पहले मैंने फास्ट ट्रैक किया था, अभी तो मैं रेगुलर भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो जो बेसिकली फेल स्टूडेंट आते हैं ना, और अगर आप उसकी चेन देखोगे ना, पहले तो क्या हुआ था, मई नवंबर में एग्जाम आया करते थे इंटर के भी, तो मई टू मई वी आर नवंबर ट्रेंड हुआ करता था। मई में पास हुए, मतलब फेल हुए, फिर नवंबर, फिर मई। अगर आप देखोगे कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है भाई, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, और इतना भी टिपिकल नहीं है कि आप इतनी अटेम्प्ट दो। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, मान लीजिए एक अटेम्प्ट में क्या हुआ कि भाई एक सब्जेक्ट में कम आए, दूसरे 2 सब्जेक्ट या दूसरे 3 सब्जेक्ट जो हैं उसमें आपके मार्क्स 50-55 आ गए। ओके, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं अभी ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट है ना, वो तो मैं कर लूंगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, लो में प्रॉब्लम आया है, उसमें मुझे 39 है, तो मैं उसको फोकस करता हूं। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे लो अच्छा हो जाता है, और फिर टेक्स्ट में प्रॉब्लम होता है, तो वे भी बोलेंगे टेक्स्ट करते हैं। ऐसा कभी भी मत करो, क्योंकि फिर ये जो चेन ऑफ अटेम्प्ट है ना, वो कभी रुकने वाली नहीं है। एक सब्जेक्ट निकलेगा फिर दूसरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू नीड टू फोकस। और एक बार आप फेल हुए ना, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, रीस्टार्ट करो। जीरो से रीस्टार्ट करोगे ना, तो कभी भी दूसरी बार वो अटेम्प्ट आने वाली नहीं है। क्योंकि क्या है, इक्वल फोकस शुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट। और आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी है कि भाई मेरी वीकनेस कहां पे। हर एक स्टूडेंट की वीकनेस अलग अलग होती है। किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम है, किसी को प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है, किसी को सब आता है, बट कोई ऐसा मास्टर सब्जेक्ट नहीं है कि चलो वो आपको एग्रीगेट में प्रॉब्लम ना करवाए या आपको रैंक में हेल्प करे। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कि मैं कहां पे रॉन्ग जा रहा हूं, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू, यू कैन से इंप्रूव। तो आप कोई अगर फेल होता है तो उसको क्या एडवाइस देंगे? अगर कोई 2 बार फेल हो गया, 3 बार रिपीटेडली फेल हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटेड और लीविंग इट, सरेंडर करने से अच्छा आप क्या एडवाइस करेंगे? सिंपल है ये, जो एक्चुअली आपने जैसे बोला ना कि ये फेल्यूर नहीं है, ये असफलता जो है ना एक चुनौती है, उसको आप चुनौती के तौर पे स्वीकार करो। और जो हैपन हो चुका है अभी उस पे आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी जो भी एरर है उसको आप रेक्टिफाई करो, उसमें से सीख लो कि नहीं, लास्ट अटेम्प्ट में जब मैं फेल हुआ तब मैंने यहां पे गलती की थी। तो आप कुछ भी ऑप्शन में मत निकालो, 100% कोर्स पूरा करो। जो टॉपिक आपने स्किप किया है, कई बार क्या होता है फेल होने के बाद क्या करते हैं, फिर से शुरू करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो लास्ट के चैप्टर या जो टफेस्ट चैप्टर होते हैं ना, वो स्किप कर दिए होते हैं, और दूसरे टाइम में भी वही होगा कि उस चैप्टर तक पहुंचोगे ना तब तक डेट्स आ जाएगी। तो एक तो पूरा शेड्यूल होता नहीं है, दूसरा आप वहां से शुरू करते हैं जो आपको आता है, आपको पसंद है। रादर मैं ऐसा बोलूंगा, जब फेल होने के बाद जब आप फिर से पढ़ाई शुरू करो, वहां से शुरू करो जो आपने छोड़ा हुआ था, जो आपको नहीं आता, वो आप अपना जो है वीक पॉइंट, उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लोगे ना, तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसको रिवाइज करना है। शेड्यूल बनाओ प्रॉपरली, एक कंसिस्टेंसी से प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो। फिर शेड्यूल पे भी इतना नहीं उलझना है कि सिर्फ आप शेड्यूल बनाते रहो और ऑन पेपर ही रहे और एक्चुअली प्रैक्टिस में कुछ ना आए। इंप्लीमेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट सीरीज। मेरे जितने भी क्रैश बैच के स्टूडेंट है, एज आई सेड 70-80% रिजल्ट आता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यूज्ड टू टेल मी कि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज है ना, उससे हमें इतना बेनिफिट मिला है। क्योंकि जब आप एक्चुअली, ये तो ऐसा हुआ कि आप क्रिकेट देख देख के ऐसा बोलते हैं चलो अभी मुझे अच्छा आ जाएगा, आई विल बी एबल टू बैट वेल। जब तक आप बैट हाथ में नहीं लोगे ना, तब तक बैटिंग कर ही नहीं पाओगे। सो यू नीड टू प्रैक्टिस वेल। और प्रैक्टिस कैसे होगा, जैसे आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जाओगे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर एक टेस्ट को देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट को, और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट को, देन इट विल श्योरली हेल्प यू आउट। We are We also are also planning the planning same the thing. I same think thing. we I are think we coming are up with coming up with MCQ to MCQ start to with, start and in with, and in future we future will we also will come also up come with up the with the test series, test because series, we know because we know exactly exactly agree to what agree you to are what you saying, are right? saying, That is right? very That is very important. important. Practice is Practice very is very important. important. वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. Okay. आप can you talk about your academy और आपके classes online कैसे होते हैं, offline कैसे होते हैं? Do you want to give that information to students? ओके,
बेसिकली मेरे जो क्लासेस हैं उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर तो सभी अवेलेबल हैं, ऑल सीए फाउंडेशन, ऑल सीए इंटर के कोर्स, रेगुलर, फास्ट ट्रैक, सब कुछ रिकॉर्डेड अवेलेबल है। और फेस टू फेस में मैं यहाँ पे राजकोट गुजरात में ये लेक्चर्स लेता हूँ। और लाइव लेक्चर्स जो हैं, ओके, वो अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर लाइव लेक्चर्स भी आ जाएंगे। बट अभी मेरे पास 2 वर्जन है, फेस टू फेस है और रिकॉर्डेड है, जिसमें क्या है, और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मिलता है, एंड आई पर्सनली गाइड ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, मैं टीम मेंबर को नहीं बोलता हूँ गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं खुद उसमें पर्सनली हर एक स्टूडेंट का जो पर्टिकुलरली वीकली बेसिस होता है, वीकली बेसिस पे मैं उसका अपडेट लेता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे वीकनेस है, क्या इंप्रूव करना है। और लेक्चर में, ऑनलाइन में लेक्चर में क्या होता है, बिगेस्ट इश्यू ये होता है कि एक बार आपने लेक्चर परचेज कर लिया रिकॉर्डेड वर्जन, ओके, तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि ठीक तरीके से वो अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसका मतलब ही नहीं रहता। तो प्रॉपर एक टाइमलाइन के हिसाब से जाना होता है कि ये टाइमलाइन में आपको इतना खत्म करना है, ये टाइमलाइन में इतना खत्म करना है, और फिर उसकी टेस्ट भी साथ साथ में देनी होती है। तो वो अगर आप 1-to-1 बेसिस पे मेंटरशिप के साथ जाओगे ना, जिसमें क्या होगा कि आपको गाइडेंस भी मिलेगा, कैसे लेक्चर देखने हैं, अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो आपका जो भी डाउट सॉल्यूशन है वो भी इमीडिएट लेवल पे हो जाएगा, और आपकी टेस्ट सीरीज भी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। तो आपको क्या है, फ्रॉम विद इन यू विल फील कॉन्फिडेंट कि नहीं, कुछ इंप्रूव हो रहा है और मेरा जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, डेप्थनेस मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, एवरीथिंग विल गो। तो अगर कोई अगर किसी को, कोई स्टूडेंट्स को डाउट होगा आपका लेक्चर खरीदने के बाद, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू फॉर एनी क्लैरिफिकेशन? डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ऐप तो है, ऐप में भी मैसेज कर सकते हैं, बट आई गो बाय पर्सनली कि मेरे पर्सनल नंबर पे ही आप मैसेज कर दो, और विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई आ जाता है। अगर नहीं आता तो फिर मैं पर्सनली उसको कॉल कर देता हूँ। और कोई डाउट ऐसा है जिसमें मैसेज से सोल्व नहीं होगा तो फिर कॉल या जूम मीटिंग से हम डिस्कस कर लेते हैं। There are very few faculties who do this, sir, in the entire industry, because सब कोई पढ़ाने में इतना बिजी हो जा रहे हैं, इतना कोर्स सेल कर रहे हैं, बट ये समझना कि आफ्टर सेल, राइट, इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन, एनी डाउट्स क्लियर। एक्चुअली ये बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। और नोबल प्रोफेशन में सी मोड सिर्फ चेंज हुआ है, आप समझो, आपने ऑनलाइन मोड में गए हैं, एजुकेशन फील्ड इज गोइंग स्विच ओवर टू द ऑनलाइन मोड, सिर्फ मोड बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, दैट्स इट। या ई कॉमर्स शुरू कर दिया, आपने प्रोडक्ट दे दी, बस वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, वो नहीं होगा। करेक्ट। यहां पे क्या होगा कि आप समझो, ये स्टूडेंट है और आपका और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो कैरी होने वाला है आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। तो वहां पे प्रॉपरली गाइडेंस मिलना, अगर आप जहां पे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसको मोटिवेट करना, वो जरूरी है। और जब आप वो कनेक्शन में रहोगे ना तो दिल फील हैप्पी, और उसको भी पता लगेगा कि नहीं, चलो यहाँ पे मुझे परेशानी आ रही है तो दिस इज हाउ आई कैन टैकल। और ऑब्वियसली स्टूडेंट को गाइडेंस की बार बार जरूरत होती है, क्योंकि जो आप पर्सनली गाइडेंस दे सकते हैं वो आप मतलब डिस्टेंस में अगर आपको वो मेंटेन करोगे ना तो ही होगा, वरना अगर वो उसने कंप्लीटली रिकॉर्डेड मोड पे ले लिया तो फिर वो क्या कर रहा है वो उसको खुद को पता नहीं, वो कंप्लीट भी नहीं करेगा कोर्स। इसके अगर जो उसको बीच में कुछ समझ में नहीं आया, ही विल लीव इट देयर। हाँ, वो कांटेक्ट ही नहीं करेगा। कई बार तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये फैकल्टी का परचेस कर लिया, अभी मैं इसको कांटेक्ट कैसे करूं, और वो कांटेक्ट ही नहीं करेगा। उसको डाउट है फिर भी वो कांटेक्ट नहीं करेगा, उसको ऐसा है कि वो रीचेबल नहीं है। एक्चुअली यू शुड बी रीचेबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इजीली। अगर आप वो रीचेबल है इजीली तो फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर स्टूडेंट टू आस्क यू डाउट। So, sir, before we drop, how's your preparation and what is the advice for the student of inter and foundation? उनका एग्जाम आएगा जैन में, so any thought on that? ओके, रिसेंट एग्जाम जब आता है आपको, और लास्ट आपके जो 30 डेज हैं, लास्ट 30 डेज आपके बहुत ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अब तक आपने जितना भी प्रिपरेशन किया, 4 मंथ्स 8 मंथ्स रेगुलर लेक्चर, फास्ट ट्रैक लेक्चर, यूट्यूब से फ्री लेक्चर, मैराथन, कुछ भी किया, एक बात समझ लो, आपके जो लास्ट 30 डेज में आप खुद से रिवाइज कितना करते हो, दैट इज रियली वेरी क्रूशियल। यू कैन नॉट गिव कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टी टू यू कैन से गो फॉर मैराथन एंड ऑल। जो भी आपने फैकल्टी आपने सेलेक्ट किया है उसको ट्रस्ट करो,
30 डेज में उसका प्लान फॉलो करो, रेगुलर टेस्ट सीरीज दो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। खुद से जितना रिवाइज करोगे उतना आप क्रैक इजीली कर पाओगे। Well, thank you so much, sir, for coming here and helping our students know how to crack their exams and how to come up. My pleasure, and thanks for giving me the opportunity for giving my knowledge to, you can say, entire fraternity, student fraternity. Thank you Thank so you much. so much. Yeah.